قومی اداروں کو نقصان سے نکال کر فعال اور مستحکم بنانا حکومتی ایجنڈے کا اہم جز۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت PIA میں اصلاحات کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس۔ قومی ایئر لائن میں انتظامی اصلاحات مزید تیز کرنے کے ساتھ تمام موجودہ وسائل کو شفاف طریقے سے استعمال یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کورونا کے سماجی اور اقتصادی اثرات، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے شعبے کے لیے عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو $1500 ملین دیں گے۔ اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط، وزیر اعظم عمران خان تقریب میں موجود۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں احساس کیش ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اور رینجرز اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت۔ متعلقہ اداروں سے واقعات کی رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم کی حملوں میں شہید ہونے والے رینجرز اہلکاروں اور شہریوں کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی ملاقات۔ فیڈرل پاپولیشن ٹاسک فورس کے سابقہ 2 اجلاسوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ صدر مملکت کا بڑھتی ہوئی آبادی پر تشویش کا اظہار۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور۔ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا۔ انکم ٹیکسز لینڈ ریونیو کمشنر کو 7 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کر کے برطانیہ میں تینوں جائیدادوں کے بارے تفصیل معلوم کرنے کی ہدایت۔ حکومت فیصلے سے مطمئن، ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ لندن میں 3 فلیٹس اور منی ٹریل کی تفصیلات جمع کرانا ہوں گی۔ چیئرمین FBR سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس۔ خیبر پختونخوا کا 9 خرب 23 ارب روپے کا ٹیکسز فری بجٹ پیش۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 3 خرب 17 ارب روپے سے زیادہ۔ صحت کے شعبے کے لیے 1 خرب 24 ارب روپے مختص۔ 27 اشیاء پر سیلز ٹیکسز پر کمی کی تجویز۔ رواں مالی سال میں صوبے کے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ جاری ہوگا۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے بجٹ پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر آج بھی متنازع مسئلہ ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ بھارت نے جھوٹا آپریشن کرنے کی حماقت کی تو 27 فروری کا جواب یاد رکھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت۔ ضلع شوپیاں اور پلوامہ میں مزید 6 کشمیری نوجوان شہید۔ مقبوضہ علاقے میں 2 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,944 افراد نے کرونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,65,062 تک جا پہنچی۔ مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,229 جاں بحق، 61,383 صحت یاب۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 86,85,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,59,000 سے زیادہ افراد ہلاک، 45,70,000 صحت یاب۔ امریکہ میں 22,78,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,21,000 سے زیادہ جان کی بازی ہار گئے۔
42 अजला में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम भरपूर तौर पर जारी। 8,335 मुरबा किलोमीटर रखते में कंट्रोल ऑपरेशन। 3,24,609 मुरबा किलोमीटर रखते पर सर्वे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और कोचेज के कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तोसी। 30 जून को खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में 31 जुलाई तक तोसी। खिलाड़ियों और कोचेज का 12 माह पर मुश्तमिल आइंदा सालाना कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त से शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी बढ़ने की खबरों की तफसीलात की तरफ आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अहम कौमी इदारों को नुकसान से निकालना और उन्हें फाल और मुस्तहकम इदारे बनाना मौजूदा हुकूमत के एजेंडे का अहम जुज़ है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में इस्लाहात के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकारी इदारों के अरबों रुपए के नुकसान का बोझ बिल आखिर अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है, लिहाजा इस्लाहाती अमल को मज़ीद तेज करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA जैसे कौमी इदारे को फ़आल और मुनाफा बख्श बनाने के लिए ज़रूरी है कि इंतज़ामी इस्लाहात तेज़ करने के साथ साथ तमाम मौजूद वसाइल का निहायत शफ़ाफ तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस ज़िम्न में मुफस्सल और जामे हिकमत अमली के मुताबिक तरजीही बुनियादों पर पेशरफ्त की जाए। इजलास को बताया गया कि PIA की मौजूदा इंतजामिया के दौर में इदारे के नुकसानात में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई और ऑपरेशनल सतह पर इदारा बगैर नुकसान उठाए परवाजें चलाने की पोजीशन में आ गया था। ताहम कोरोना की सूरत हाल के बायस ये काविशें मुतासिर हुई हैं। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कोरोना के समाजी और इक्तिसादी असरात से निपटने, सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क को मुस्तहकम करने के लिए आइंदा चंद रोज में $1.5 अरब फराहम करेंगे। तीनों बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ इस हवाले से मुआहिदों पर दस्तखतों की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान भी तकरीब में मौजूद थे। तीनों मालियाती इदारे $50 करोड़ की माली इमदाद फराहम करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और तंजीमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और इससे निपटने के हवाले से विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमेटी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में विफाकी हुकूमत की कोरोना के इंसदाद की हिकमत अमली की भरपूर तायद की गई। पाकिस्तान के मारूसी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसला साजी काबिल तहसीन है। कोर कमेटी का कहना है कि कोरोना के इंसदाद की हुकूमती काविशों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। इजलास में कोरोना के इंसदाद और वबा से बचाव के लिए राय आमा हमवार करने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। कोर कमेटी ने हिफाजती तदाबीर के हवाले से अवाम में आगही पैदा करने के लिए जमाती काविशें तेज करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान पार्लियामेंट को आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर शरीक होने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुंतखब अरकान अपने हलकों में अवाम को SOPs का ख्याल रखने और हिफाजती तदाबीर अपनाने की तरगीब दें। उन्होंने कहा कि एहसास जिम्मेदारी और समाजी सतह पर संजीदा तर्ज अमल के जरिए वबा से निजात मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौमी तहज़ीम तबद्दुन और पाकिस्तानियत के फ़रोग़ के हवाले से कोशिशों की भरपूर पजीराई की जाएगी। वीडियो लिंक के जरिए मुल्क के मुमताज़ अहले कलम के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन की इस्लाह पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि PTV कौमी तशख़्ख़ुस उजागर करने में अपना किरदार माज़ी की तरह अदा कर सके। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि इस दिन में निजी TV चैनल्स ही अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंटरनेट पर काबिल एतराज़ मवाद की आसान
दस्तयाबी, मगरबी तौर तरीक़ों और बैरूनी कल्चर की अलगाज से हमारी इक़दार नई नस्ल की अखलाकियात और तालीम और तरबियत को शदीद चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि शायर इस्लामी और कौमी इक़दार से मुतासादम कल्चर की भरमार से जहाँ हमारी तारीख, सकाफत और माशरती इक़दार को खतरात लाहक हैं, वहीं नई नस्ल में अपने इस्लाफ, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और कौमी तारीख के बारे में आगाही भी बराए नाम और महदूद होती जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नई नस्ल को कौमी तशख़्ख़ुस और पाकिस्तानियत से रूशनास कराने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे नामवर अहले कलम जिनकी तहरीरें मुआशरे को हर तबके में मकबूल हैं, इस दिन में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। वीडियो लिंक मुलाकात में वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शबली फराज और मुआविन खुसूसी इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा भी शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची, घोटकी और लाड़काना में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में एहसास, कैश डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और रेंजर्स एहलकारों पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने हमलों में शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों और शहरियों के दर्जात की बुलंदी और पसमानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों से इन वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आबादी में इजाफे की मौजूदा रफ्तार को रोकने की जरूरत है। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा से बातचीत करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि आबादी में इजाफे के समाजी और माशी असरात के हवाले से अवाम में शऊर बेदार करने की जरूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फेडरल पॉपुलेशन टास्क फोर्स को अपने मकासद के हुसूल के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत की। इस मौके पर आदाब की जल्द अज जल्द तकमील के लिए फेडरल पॉपुलेशन टास्क फोर्स का 3रा इजलास बुलाने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त मंजूर करते हुए मुत्तफका तौर पर उनके खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने रेफरेंस के नतीजे में शुरू होने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और जस्टिस काजी फाइज ईसा को जारी होने वाला इजहार वजूह का नोटिस भी खत्म कर दिया है। अपने मुख्तसर फैसले में 10 में से 7 जजेस ने मुतल्लिका इनकम टैक्सेस लैंड रेवेन्यू कमिश्नर को 7 रोज में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को नोटिस जारी करने की हिदायत की है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मुतल्लिका जज की अहलिया और उनके बच्चों से लंदन में जायदादों की खरीद के ज़राए मालूम करने के हवाले से इस्तफसार करने के लिए नोटिस उनकी सरकारी रहायशगाह के एड्रेस पर जारी किया जाए। अदालत ने मुतल्लिका जज की अहलिया और बच्चों को नोटिस का जवाब मुनासिब दस्तावेजात के हमरा देने की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया कि इस ज़िम्न में किसी मुद्दा अलैहा के बैरून मुल्क होने के जवाज़ को खातिर में नहीं लाया जाएगा। अदालत ने मुतल्लिका इनकम टैक्सेस लैंड रेवेन्यू कमिश्नर को 60 रोज में काम मुकम्मल करने की हिदायत की। अदालत ने चेयरमैन FBR को इनकम टैक्सेस लैंड रेवेन्यू कमिश्नर के फैसले के बाद रिपोर्ट रजिस्ट्रार की वसातत से चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि जायजे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतल्लिका जज के खिलाफ अज खुद कार्रवाई की मजाज होगी। बेंच के 3 जजेस जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मामला FBR और लैंड रेवेन्यू कमिश्नर को भिजवाने की मुखालफत की है, ताहम सदारती रेफरेंस खारिज करने से इत्तफाक किया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर शिबली फराज और एहतसाब के लिए वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला आया है और हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये बहुत अहसन फैसला है। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज की कि हुकूमती रेफरेंस भेजने का जो इतला हमारे पास थी और उसकी वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इदारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि एक आईनी इदारा है उसके सामने रखने की हरगिज ये नहीं था कि हम एक चीज पे तय थे कि ये इस चीज का नतीजा ऐसा ही होना है। हम शुरू दिन से इस बात का यकीन रखते हैं कि जजेस के मामलात सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने चाहिए। इंतजामिया का, एग्जेक्टिव का उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक सिर्फ उस हद तक है कि आपने इतला पहुंचा दी जो आइन के मुरवज्जा तरीके हैं उसके मुताबिक। अब ऑनरेबल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच की रोशनी में जो इसके लिए स्कीम ऑफ थिंग्स तय की गई हैं, हम ये समझते हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं।
انہوں نے کہا کہ ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل ایف بی آئی کے چیئرمین کی رپورٹ پر کارروائی کرے گی۔ دو پروسیڈنگز ہیں الگ الگ۔ ایک پروسیڈنگز وہ ہیں جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت انکم ٹیکس کی اتھارٹیز کے سامنے ہونی ہیں۔ اس میں جو پارٹیز ہیں ان پارٹیز کے اپنے رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کی جب بھی آپ کے اوپر کوئی ٹیکس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر اپیلز کر سکتے ہیں، اور اپیل کے بعد اس میں ٹریبیونل ہے، کورٹس ہیں، وہ سپریم کورٹ تک معاملہ چلتا ہے، لیکن وہ ان پارٹیز کی ذات تک ہوگا، ان کی حد تک ہوگا جو ایف بی آر کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ اس کے پروسیڈنگز جو ٹیکس کی ہونی ہیں اس کا کوئی بھی تعلق سپریم جوڈیشل کونسل کے پروسیڈنگ سے نہیں ہوگا۔ محض جو رپورٹ بنائی جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے، وہ رپورٹ بیسس بنے گی سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے کارروائی کرنے یا نہ کرنے کی، اور اس اسکیم آف تھنگز میں انہوں نے یہ پٹیشن جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت فالس آپریشن کی حمایت کرنے سے قبل 27 فروری کا جواب یاد رکھے۔ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے کے لیے پاکستان نے بھارت کو کوئی واک اوور نہیں دیا۔ بھارت پہلے بھی 7 مرتبہ رکن رہ چکا ہے۔ سینٹ میں وزیر خارجہ کے اظہار خیال اور وفاقی بجٹ پر بحث کی مزید تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے رانا شہزاد السلام۔ سینٹ کے اجلاس چیئرمین محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ بھارت کے سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے معاملے پر پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ انتخابی عمل علاقائی سطح پر ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت ایشیا پیسفک ریجن کا حصہ ہیں۔ دونوں ملک ماضی میں 7 مرتبہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ بھارت 5 اگست کے بعد سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ سیکورٹی کونسل میں اگر میں نے کہا کہ the heavens won't fall اگر انڈیا ممبر بن جاتا ہے، اور آج پاکستان اکیلا نہیں ہے، آج بھارت کی کیفیت جناب چیئرمین یہ ہے کہ 5 اگست کا جو فیصلہ ہے جس کو پاکستان کی قوم نے اور آپ سب نے، گورنمنٹ اپوزیشن سب نے مل کے متفقہ قرارداد سے مسترد کیا، آج چین بھی اس کو مسترد کر چکا ہے۔ آج نیپال کہہ رہا ہے یہ علاقے جو ہیں بھارت تمہارے نہیں ہیں، ہمارے ہیں۔ آج سری لنکا کے اعتراضات ہیں، بھوٹان اور بہت سے لوگ ہیں، وہ کیفیت نہیں ہے۔ آج افغانستان بھی سوچتا ہے کہ وہاں امن کے مسئلے میں اور ریکنسیلیشن میں رخنہ اندازی کر رہا ہے۔ بھارت جناب چیئرمین آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ عوام کے پیسے کو امانت سمجھ کر خرچ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان اس قوم کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں۔ عمران خان ماضی کے حکمرانوں کی طرح ملکی خزانے پر بوجھ نہیں بلکہ اس کے محافظ بن گئے ہیں، اور اپنے آپ سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے، اپنی مثال آپ انہوں نے قائم کی ہے۔ سینیٹر محسن عزیز، سینیٹر کرشنا کماری، سینیٹر مشاہد حسین سید، سینیٹر ولید اقبال، سینیٹر ستارہ ایاز، سینیٹر عابدہ عظیم، سینیٹر نصیب اللہ خان بارزئی، بیرسٹر محمد علی سیف، سینیٹر ہلال الرحمان، سینیٹر ڈاکٹر غوث بخش نیازی، سینیٹر جاوید عباسی اور سینیٹر عثمان خان کاکڑ نے بجٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبا کے چیلنج سے کوئی ایک فرد، ایک پارٹی یا ایک صوبہ نہیں نمٹ سکتا، اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت اور احساس پروگرام کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے ٹیسٹنگ اور قرنطینہ کے حوالے سے مربوط پروگرام بنایا گیا ہے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے سینٹ میں مالیاتی بل، ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2020 اور اسمگلنگ کی روک تھام کا بل 2020 پیش کیے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے معروف کمپیئر اور صداقار طارق عزیز مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی۔ سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی ہو گیا۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبروں کی جانب یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے کہ ٹیکس فری بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 3 کھرب 17 ارب روپے سے زائد اور صحت کے شعبے کے لیے 1 کھرب 24 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال میں خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ جاری کیا جائے گا۔ بجٹ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم ٹھکرا نے ایوان میں پیش کیا۔ تفصیلات محمد شاہد سے۔
کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی بدترین معاشی صورتحال اور کساد بازاری کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت نے متوازن اور ٹیکس فری بجٹ پیش کیا۔ صوبائی اسمبلی کے اجلاس سے بجٹ تقریر کرتے ہوئے وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ سخت ترین حالات کے باوجود صوبائی حکومت نے ترقیاتی بجٹ کا حجم برقرار رکھا ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لاگو کیا گیا۔ مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے ترقیاتی بجٹ کا حجم برقرار رکھا ہے، کیونکہ اسی سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ اس سے عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور ایک سٹیمولس بھی اکانومی کو ملے گا، اور وہ ہے ٹیکس فری بجٹ۔ اور ٹیکس فری بجٹ سے میرا مطلب نہ ہی کوئی نیا ٹیکس، نہ ہی ٹیکس ریٹس میں کوئی اضافہ، اور بہت سے شعبوں میں ٹیکس ریلیف کا اس صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج۔ صوبائی بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے 124 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس میں 105 ارب روپے سے زائد بندوبستی اضلاع، جبکہ ضم شدہ اضلاع کے لیے 18 ارب روپے سے زیادہ رکھے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ نے آئندہ مالی سال کے دوران صوبے کی تمام آبادی کے لیے ہیلتھ کوریج کا اعلان کیا، جس کے بعد خیبر پختونخوا پاکستان کا پہلا صوبہ ہوگا جہاں پر 3 کروڑ 50 لاکھ آبادی کو صحت انصاف کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ انسانی وسائل کی ترقی کے لیے تعلیم بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ بجٹ 2020-21 میں ثانوی تعلیم کے لیے 152 ارب 40 کروڑ روپے جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے 26 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ زراعت کے شعبے کے لیے 17 ارب 10 کروڑ روپے، سوشل ویلفیئر کے لیے 3 ارب 10 کروڑ روپے، کھیل، ثقافت و سیاحت کے لیے 6 ارب 68 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محصولات کا ذکر کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ نے کہا کہ صوبے کو وفاق سے 874 ارب روپے ملیں گے، جبکہ 49 ارب روپے خیبر پختونخوا کے اپنے وسائل سے حاصل ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 161 ارب روپے کی گرانٹ خیبر پختونخوا میں نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی پر خرچ ہوں گے۔ دہشت گردی سے متاثرہ صوبے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے قابل تقسیم محاصل سے 48 ارب 60 کروڑ روپے ملیں گے۔ صوبے کی معیشت کو سہارا دینے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے بلا سود قرضوں کی فراہمی، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ٹیکس میں ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زونز کے لیے بھی مراعات کا اعلان کیا۔ بجٹ میں کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے 24 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں، جس میں 15 ارب روپے بندوبستی اضلاع جبکہ 9 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائر ملازمین کے پینشن میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں بجٹ تجاویز کی منظوری دی گئی۔ محمد شاہد، PTV نیوز، پشاور۔ ناظرین، آئندہ مالی سال کے لیے گلگت بلتستان کا 68 ارب 68 کروڑ روپے 29,57,000 روپے حجم کا بجٹ ایوان میں پیش کیا گیا۔ بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 15% جبکہ گریڈ 17 اور اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا۔ وزیر قانون پارلیمانی امور اورنگزیب خان نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 25 ارب اور غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 35 ارب 88 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ گندم پر سبسڈی کے لیے 6 ارب روپے، توانائی کے شعبے کے لیے 3 ارب 56 کروڑ، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 2 ارب 20 کروڑ، تعلیم کے لیے 1 ارب 33 کروڑ اور صحت کے لیے 1 ارب 82 کروڑ، دیہی ترقی کے لیے 53 کروڑ جبکہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے، جہاں بھارتی فوجیوں نے کشمیر کے علاقوں شپیاں اور پلوامہ میں مزید 6 نوجوان شہید کر دیے، جس کے بعد 2 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 4 نوجوانوں کو شپیاں کے علاقے بانڈ پاور چھترگام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران، جبکہ 2 کو پلوامہ کے علاقے پامپور اور 1 مسجد کے اندر شہید کیا گیا۔
फौजियों और पुलिस एहलकारों ने पामपुर में शहादतों पर एहतजाज करने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग की और ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। काबिज फोर्सेस ने पुलवामा, शुपियां, इस्लामाबाद, कुलगाम, कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा। जिनसी तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मखबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद को दबाने के लिए खवातीन की गिरफ्तारी, तशद्दुद और बेहुरमती को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फौजियों ने कश्मीर में जनवरी 1989 से अब तक 11,204 खवातीन को आबरू रेसी का निशाना बनाया। कननपुरा इज्तिमाई बेहुरमती, शुपियां में दोहरे कत्लो असमत दरी और कठुआ में कमसिन बच्ची की आबरू रेसी और कत्ल के अलमनाक वाक़यात मखबूजा कश्मीर में खवातीन पर भारतीय मसालिम की शर्मनाक मिसालें हैं। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि भारतीय फोर्सेस की तरफ से जनवरी 1989 से अब तक शहीद किए जाने वाले 95,600 अफराद में हजारों खवातीन शामिल हैं। श्रीनगर में इजलास से खिताब करते हुए हुर्रियत रहनुमा फिरदौस अहमद शाह ने भारत पर जोर दिया कि वो मुतनाज़ कश्मीर को बातचीत के जरिए हल करने के लिए संजीदा इक़दाम करे। शबीर अहमद डार, बिलाल सदीकी और तहरीक वहदत इस्लामी ने अपने बयानात में भारतीय फौजियों के हाथों शुपियां और पुलवामा में शहादत पाने वाले नौजवानों को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। मज़ार शुहदा पर इज्तिमा से खिताब करते हुए उम्मत इस्लामी के चेयरमैन काजी यासिर और दूसरे मुक़र्रीन ने मारूफ आलिम दीन काजी निसार को उनके यौम शहादत पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। भारत की बड़ी ऑपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से कबल की आईनी पोजीशन की बहाली का मुतालबा किया है। पेरिस में कायम तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मकबूजा कश्मीर में मुतारिफ की गई नई मीडिया पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने तनाज़ात में जिनसी हिरासत के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर मकबूजा कश्मीर की खवातीन के साथ यकजहती का इज़हार किया है। एक बयान में तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने कहा कि मकबूजा वादी में ख्वातीन भारतीय काबिज अफवाज की मुसलसल ज्यादती का निशाना बन रही हैं। तर्जुमान के मुताबिक भारत असमत दरी के रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीरी ख्वातीन की आबरू रेजी के मुर्तकिब भारतीय फौजियों को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल एक्ट जैसे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ हासिल हैं। आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान में मजीद 4,944 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 136 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,65,062, जबकि 3,229 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 61,678 है। सिंध में 62,269, इस्लामाबाद में 9,941, बलूचिस्तान में 8,998 और खैबर पख्तूनख्वा में 20,182। गिलगित बल्तिस्तान में 1,225 और आज़ाद कश्मीर में 769 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 28,824 नए टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 61,383 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि कोरोना वबा के खिलाफ सेहत के शोबे में खिदमात सर अंजाम देने वाले मुल्क को कौम का असासा हैं। इनकी शिकायत का बर वक्त अताला हमारी अवलीन तरजीह है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में ब्रीफिंग देते हुए मुआविन खुसूसी सेहत ने कहा कि शिकायत और तजावीज़ बर वक्त हुक्काम तक पहुँचाने के लिए हेल्थ वर्कर्स हेल्पलाइन 1166 के अलावा खुसूसी व्हाट्सएप नंबर पर भी राबता कर सकते हैं। +92 300 111166 1166 पे या इस व्हाट्सएप के नंबर पे जैसे ही आपकी कंप्लेंट मिलेगी फौरी तौर पे हमारे जो फोकल पॉइंट्स हैं उन सूबों के अंदर उनको भेज दी जाएगी और वो उस शिकायत का अजाला करेंगे कम से कम वक्त में। आपके नंबर पे फिर राब्ता करके आपको ये बताया जाएगा उसका स्टेटस क्या है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कोरोना वबा से निपटने के लिए हमें इत्तेहाद, यकजहती और कसीरुल जहत ताउन की जरूरत है। बेल्ट एंड रोड बैनुल-अक़वामी ताउन और कोरोना आलमी वबाई चैलेंज के हवाले से बैनुल-अक़वामी वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि हमें BRI के प्लेटफॉर्म से आम तरक्की और खुशहाली जैसे मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखना होगी। BRI countries should unequivocally declare a united front to combating COVID-19. Against this common enemy, we must close our ranks and forge unity. We must draw lessons and learn from each other's experiences and expertise. Our epidemiologists, health professionals, hospital managers, research and equipment suppliers must be enabled to network and work together to innovate solutions. Pakistan fully supports the idea of the Health Silk Road and will play its role in its realization. वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना वबा से मुतासर हुआ तो चीन ने हमारी बेपनाह मदद की और सदर शी जिनपिंग की खुसूसी हिदायत पर चीनी डॉक्टरों की टीम ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों का दौरा किया और अपने तजुर्बात से हमारे डॉक्टर्स की रहनुमाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने की, जिसमें 25 मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा और आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान अफगान अमन अमल की हिमायत और इस हवाले से अपने मौसर किरदार के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। अमन मफ़ाहमत के लिए फ़रीक़ैन से मुखलिसाना काविशों की उम्मीद करते हैं। मीडिया के सवालात के जवाबात देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने 16 और 17 जून 2020 को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा के दौरे में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर समेत तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात की और अफगानिस्तान में अमन मफ़ाहमत पर अमल पर बातचीत की। तर्जुमान के मुताबिक नुमाइंदा खुसूसी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन मफ़ाहमत के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। इस तनाजुर में उन्होंने बर्री फौज के सरबराह के हालिया दौरा काबुल का भी हवाला दिया, जिससे पाकिस्तान की कोशिशों को नई मुहिम मिली है। नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि अमरीका तालिबान अमन मुआहदे के मुताबिक कैदियों की रिहाई बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के फौरी आगाज की जानिब पेशरफ्त का बाइस बनेगी। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 86,85,000 से तजावुज कर गई, जबकि हलाकतों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अब तक 4,59,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। दूसरी जानिब कोरोना के खिलाफ मौसर इक़दामात की बदौलत सेहतमंद अफराद की तादाद में भी खातिर खा इजाफा हो रहा है। अब तक 45,77,000 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहाँ 22,78,000 शहरी कोरोना का शिकार हो चुके हैं और 1,21,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 48,400 तक जा पहुंची है। 10 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। रूस में 5,69,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, 7,850 जान की बाजी हार चुके हैं। भारत में 3,92,000 अफराद मुतासर, 1,290 से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने सीपैक के तहत हाइड्रो पावर मंसूबों के सिक्योरिटी पैकेज के दस्तावेजात ECC को भेजने की मंजूरी दे दी। प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड का इजलास वजीर तवानाई उमर अयूब खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। ECC से दस्तावेजात की मंजूरी से 1,124 मेगावाट के कोहाला और 700 मेगावाट के आज़ाद पतन मंसूबों के मुआहिदों की मंजूरी हो सकेगी। चीन भारत कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए मुज़मरात के उन्वान से इस्लामाबाद में
वेबिनार का इनाकाद किया गया, जिसकी सदारत पाक फसाया के साबिक सरबराह रिटायर्ड चीफ मार्शल कलीम सादत ने की। इस मौके पर मुखर्रीन ने इस तशवीश का इजहार किया कि भारत अपनी हिफाजत छुपाने के लिए पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में भारत ने खुद को तनहा कर लिया है। मुखर्रीन ने कहा कि ये तसादुम बज़ाहिर अभी टेक्निकल सतह पर है, लेकिन इसके नताइज स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हो सकते हैं। वेबिनार में साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, इकोनॉमिस्ट मैगजीन के एडिटर शशांक जोशी, फुडान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शैन डैंगली और साबिक सफीर जलील अब्बास जलानी ने इजहार ख्याल किया। लाहौर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस लॉकडाउन किए गए इलाकों में क्लोरीन स्प्रे किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में गंदम, आटे और पेट्रोल की कीमतों में काबू रखने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। इसी बारे में देखते हैं नवीद हयात की ये रिपोर्ट। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इंतजामी इक़दामात उठाने का हुक्म देते हुए कहा कि गंदम और आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आला ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बाद निर्खों में इजाफा किसी कीमत पर कबूल नहीं। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुतलका इदारे मुतहरिक रहें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी और आटे स्कैंडल की हुकूमत ने शफाफ तहकीकात करवाई हैं। हम नैब समेत तमाम इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक करके मजबूत बना रहे हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर के 50 से ज्यादा इलाकों को गुज़श्ता 2 रोज से सील कर दिया गया है। इन इलाकों में रहायश पजीर अफराद की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है और लोगों को सिर्फ इंतहाई जरूरत के तहत घरों से बाहर आने की इजाजत दी जा रही है। जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों को जरासीम से पाक करने का अमल भी शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में लाहौर के गली मोहल्लों को जरासीम से पाक करने के लिए क्लोरीन स्प्रे किया जा रहा है। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1540 नए केसेस के साथ कोरोना के मुतासर अफराद की कुल तादाद 61,678 हो गई है, जबकि 17,892 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। रुख करते हैं कराची का, जहां तमाम 6 अजला में जुज़वी लॉकडाउन का पहला दिन था, जबकि वज़ीर आला सिंध ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। घोट की बम धमाके में 3 अफराद के जाँ बहक होने पर, जबकि कराची में एहसास प्रोग्राम सेंटर के करीब क्रैकर हमले में 5 अफराद जख्मी हुए। तफसीलात ज़शान अहमद खान की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची के तमाम 6 अजला के हसास इलाकों में आज लॉकडाउन का पहला दिन था। इन इलाकों में मलीर की यूसीज, गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, गुलशन जमाल, कोरंगी, एमए जिना रोड, जमशेद टाउन की यूसीज के अलावा दीगर इलाकों की यूसीज भी शामिल हैं। इन यूसीज में एसओपीज पर अमल करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि ग्रोसरी और फार्मेसी की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहीं। घर के किसी एक फर्द को खरीदारी के लिए बाहर निकलने की इजाजत है, जबकि बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इन हॉट स्पॉट्स में लॉकडाउन 2 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर अपने बयान में कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 13,642 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक मजबूरी तौर पर सूबे में 65,163 कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अब तक 32,725 मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम की हिफाजत की खातिर मुख्तलिफ इलाकों में सिलेक्टेड लॉकडाउन किया गया है। आज घोटकी रेलवे स्टेशन के करीब बम धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक वाकया आज सुबह पेश आया। जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले अफराद में रेंजर्स के 2 अहलकार भी शामिल हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने घोटकी में धमाके की शदीद मजम्मत की है। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी से टेलीफोन पर राब्ता करके रेंजर्स अहलकारों की शहादत पर ताजियत का इजहार करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पूरे सूबे और शहर कायद में अमन अमान के कयाम में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने घोटकी धमाके का नोटिस लेते हुए कहा कि दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
उन्होंने आईजी सिंध से फौरी इंक्वायरी और वाकये की मुकम्मल तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। कराची के इलाके लियाकताबाद में एहसास प्रोग्राम सेंटर के करीब क्रैकर हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया लियाकताबाद नंबर 10 में रियाज कॉलेज में उस वक्त पेश आया जब एक नामालूम शख्स गर्ल्स कॉलेज के गेट पर क्रैकर फेंककर फरार हो गया। लाड़काना में भी पब्लिक स्कूल के करीब रेंजर्स चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की जानिब से क्रैकर हमला किया गया, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने क्रैकर हमले का नोटिस लेते हुए आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर सिंध ने कहा कि इस हवाले से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नासिम प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वक्त ने पेशावर में वजीर आला महमूद खान से मुलाकात की। इस हवाले से कोरोना वायरस की वबा, मौजूदा सूरत हाल में निजी स्कूलों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। वजीर आला ने निजी स्कूलों के मसाइल के हल के लिए एक कमेटी तश्कील दी जो 10 रोज में सिफारिशात पेश करेगी। उन्होंने वक्त को यकीन दिलाया कि सूबाई हुकूमत निजी स्कूलों के तमाम जायज मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्यासी ने कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर शहबाज गिल ने बताया कि वो वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम और तदारुक के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। डॉक्टर शहबाज गिल और अहमद खान न्यासी ने गवर्नर अमानुल्लाह खान यासीन जई से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बलूचिस्तान में कोरोना वायरस और टिड्डी दल के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर शहबाज गिल और अहमद खान न्यासी ने शेख ज़ैद अस्पताल और फातिमा जिन्ना चेस्ट एंड जनरल हॉस्पिटल कोयटा में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ से भी मुलाकात की और कहा कि कौम को अपने फ्रंट लाइन पर काम करने वाले हीरोज पर फख्र हासिल है। मुआविन खुसूसी ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान फजील असगर से भी मुलाकात की। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कि हर साल मानसून बारिशों के बायस सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर फटने के खतरात का सामना रहता है। बरवक्त इक़दामात और मौसर हिकमत अमली से नुकसानात में खातिर ख्वाह कमी की जा सकती है। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वबा और टिड्डी दल की मौजूदा सूरत हाल में आने वाले मानसून सीजन में बड़े शहरों में सैलाब आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। NDMA has prepared a national contingency plan of 2020. I would request the authorities in Karachi to clean all the drains. Hyderabad, Sakhar, Lahore, Gujranwala, Jhelum, Rawalpindi and Nowshera. These are the cities which need immediate attention by the local authority. मुल्क भर में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम जारी है। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की 972 मुश्तरका टीमें मुख्तलिफ अजला में भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। अब तक 3,24,609 मुरबा किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है, जबकि 8,335 मुरबा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। वफाकी तरक्याती इदारे CDA का आइंदा माली साल के लिए 49 अरब का रिकॉर्ड बजट पेश किया गया है, जो रवा माली साल के मुकाबले में दुगने से भी ज्यादा है। बजट में ऑपरेशंस और तनख्वाहों के लिए 12 अरब जबकि 65 तरक्याती मंसूबों के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर तरक्याती अखराजात मजमूई अखराजात का 24% हैं। बजट में मुआवजे के लिए इजाफी 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे मुआवजों की मद में रकम 4 अरब तक पहुंच जाएगी। सरकारी शोबे के तरक्याती मंसूबों के तहत CDA बजट में 5 अरब मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। अरकान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ हर माह इजाफी तनख्वाह दी जा रही है। अपोजिशन अरकान ने बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि तरक्याती बजट में इजाफे के साथ साथ अवाम को मजीद रिलीफ फराहम किया जाए। अरकान ने अपने अपने हलकों में तरक्याती स्कीमों के बारे में भी तजावीज़ पेश की। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 80% महाजरीन का बोझ तरक्की पसीर और गरीब ममालिक बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से पहलू से ही कर रहे हैं। महाजरीन के आलमी दिन के मौके पर देखते हैं राना इफ्तिखार अहमद की ये रिपोर्ट।
مہاجرین کے مسائل اور ان کی تکالیف کے حل کے لیے اقدامات کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال 20 جون کو مہاجرین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ عالمی برادری کی توجہ مہاجرین کی ابتر صورتحال کی جانب مبذول کرانے اور ان کی حفاظت، بنیادی حقوق اور انسانی ہمدردی کے معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2000 میں یہ دن منانے کا فیصلہ کیا۔ مہاجرین کی نقل و حمل جیسے عالمی چیلنج نے دنیا کی تمام ریاستوں کو متاثر کیا ہے۔ خاص طور پر غریب ممالک اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ جنگوں، تنازعات، کشیدگیوں اور مشکل صورتحال سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مہاجرین کے بارے میں ادارے UNHCR کے مطابق تنازعات، تصادم اور دوسری وجوہات کی وجہ سے 8 کروڑ افراد بطور پناہ گزین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ 2010 میں یہ تعداد 4 کروڑ 10 لاکھ تھی۔ Almost 80 million figure, the highest that UNHCR has recorded since these statistics have been systematically collected, is of course a reason for great concern. This is, by the way, approximately 1% of the world population. عالمی سطح پر نظر دوڑائی جائے تو جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے لاکھوں افراد دربدر ہیں اور مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ افغانستان میں 4 دہائیوں سے جاری عدم استحکام، شام کے مسئلے اور روہنگیا مسلمانوں پر مظالم سمیت دیگر عالمی کشیدگیوں سے مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ مہاجرین کا شمار کمزور ترین افراد میں ہوتا ہے۔ 73% of the refugees that have crossed borders and sought asylum in another country are actually in the country next to theirs. Resettlement may have always been a small solution for few people, but a solution of choice, especially for people with very acute protection problems or vulnerabilities. پاکستان سمیت مہاجرین کی میزبانی کرنے والے تمام ملک اپنے محدود وسائل کے مطابق ان سے تعاون کر رہے ہیں۔ پاکستان نے 4 اشروں سے زائد لاکھوں افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی، جو دنیا کے کسی بھی خطے کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان اس وقت بھی لاکھوں افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ دنیا کے امیر ممالک مہاجرین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ 1951 کا ریفیوجی کنونشن اور 1967 کا پروٹوکول مہاجرین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اس وقت لاکھوں مہاجرین اپنے مسائل کے حل کے لیے عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر۔ ناظرین، کھیلوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے کانٹریکٹ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ PCB کے مطابق 30 جون کو ختم ہونے والے کانٹریکٹ میں 31 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ تمام کھلاڑیوں اور کوچز کا 12 ماہ پر مشتمل آئندہ سالانہ کانٹریکٹ 1 اگست سے شروع ہوگا۔ کانٹریکٹس میں توسیع کا فیصلہ شعبہ ہائی پرفارمنس کی جانب سے کیا گیا۔ شعبہ ہائی پرفارمنس ان دنوں تمام ڈومیسٹک کوچز کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ عمل آئندہ ماہ کے آغاز میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد
6 کرکٹ ایسوسی ایشنز کی حتمی اسکواڈ کا اعلان جولائی کے آخر میں کر دیا جائے گا۔ سیزن 2019-20 میں پی سی بی نے 192 ڈومیسٹک کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ کی پیشکش کی تھی، جس میں سے 186 کھلاڑیوں نے کانٹریکٹ قبول کر لیے تھے۔ سری لنکا کے سابق وزیر کھیل نے آئی سی سی ورلڈ کپ 2011 کے فائنل کو فکسڈ قرار دے دیا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں مہندا نندا الفگاماجن نے انکشاف کیا کہ سری لنکا بھارت کے خلاف ورلڈ کپ 2011 کا فائنل جان بوجھ کر ہارا تھا۔ سابق وزیر کھیل کے الزامات پر سری لنکن کرکٹر کمار سنگاکارا نے کہا کہ اگر ان کے پاس میچ کے فکس ہونے کے شواہد ہیں تو وہ آئی سی سی کے اینٹی کرپشن یونٹ کے حوالے کریں تاکہ اس بارے میں شفاف تحقیقات ممکن ہو سکیں۔ 2011 کے ورلڈ کپ کا انعقاد بھارت میں کیا گیا تھا اور بھارت نے سری لنکا کو فائنل میں شکست دی تھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹسمین حیدر علی کا کہنا ہے کہ دورہ انگلینڈ میں وہ کھیل کے مختلف گر سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آن لائن ویڈیو سیشن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حیدر علی نے کہا کہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے وہی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو بھارتی ٹیم میں روہت شرما ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں بابر اعظم اور اظہر علی جیسے بیٹسمین کا ساتھ ہے، جبکہ مصباح الحق اور یونس خان جیسے لیجنڈز کوچنگ کریں گے۔ ان حالات میں سیکھنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ حیدر علی نے بتایا کہ وہ سابق کپتان یونس خان سے سویپ شاٹس سیکھنے کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے طویل عرصے تک کھیلیں۔ فاسٹ بولر حارث روف کا کہنا ہے کہ وہ انگلینڈ اس ٹارگٹ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے۔ آن لائن ویڈیو سیشن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حارث روف نے کہا کہ دورہ انگلینڈ کے پہلے ٹیسٹ میں موقع ملا یا دوسرے میں وہ 100% کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ میں طویل دورے کا فائدہ ہوگا، وہاں کنڈیشنز فاسٹ بولرز کے لیے سود مند ہوتی ہیں، جبکہ بولنگ کوچ وقار یونس کے علاوہ ساتھی فاسٹ بولر سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ پاکستان کے ٹینس اسٹار اسام الحق نے لاک ڈاؤن میں ٹینس چیلنجز میں ایک انوکھے انداز میں انٹری ڈال دی۔ اسام الحق نے اپنی شادی کی شیروانی اور پگڑی پہنی اور سوئس اسٹار راجر فیڈرر کے چیلنج کا جواب دیا۔ I got dressed up in my sherwani, what I wore during my wedding. Hope you enjoy the video. Take care, stay safe and stay blessed everyone. Let's do this. اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں ایتلیٹیکو میڈرڈ نے اوساسونا جبکہ ڈیپورٹیو الاویز نے ریال سوسییداد کو شکست دے دی۔ ایتلیٹیکو میڈرڈ نے اوساسونا کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 5 گول سے ہرا دیا۔ مہمان ٹیم کی طرف سے جو فیلکس نے 2 گول کیے۔ 27ویں منٹ میں فیلکس نے پہلا گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی اور 56ویں منٹ میں دوسرا گول کر کے اسے دگنا کر دیا۔ 79ویں منٹ میں مارکوس کے گول نے ایتلیٹیکو میڈرڈ کی پوزیشن مستحکم کر دی۔ 3 منٹ بعد الویرو موراتا نے ایتلیٹیکو میڈرڈ کی برتری 4 گول کر دی۔ کھیل کے اختتام سے 2 منٹ قبل جان کراسکو نے گول کر کے ایتلیٹیکو میڈرڈ کو 5 گول سے فتح دلائی۔ Cuando casi de carambola aparece el primer gol del partido y fue la primera jugada colectiva y bien Alex Remiro. ایک اور میچ میں میزبان ڈیپورٹیو الاویز نے ریال سوسییداد کے خلاف 2 گول سے کامیابی حاصل کی۔ الاویز کی طرف سے پہلا گول بورجا سپینز نے 56ویں منٹ میں کیا۔ کھیل کے اختتامی لمحات میں مارٹن اگوریگا بیریا نے گول کر کے اپنی ٹیم کو 2 گول کی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ پرتگال پریمیئر لیگ بینیفیکا اور بوسٹو نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں۔ بینیفیکا نے میزبان ٹیم ریو ایو کو 1 کے مقابلے کر دیا۔ کھیل کے اختتام سے 3 منٹ قبل بینیفیکا نے دوسرا گول کر کے کامیابی اپنے نام کی۔ اس فتح کے ساتھ بینیفیکا کا 64 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہو گئی ہے۔ ایک اور میچ میں میزبان بوسٹو کی ٹیم نے وٹوریا ایف سی کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ بہت بہت شکریہ انیس، اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
अपनी जान और जिंद है यारों, ये मनमोहना सिंध है यारों। पूरे पाकिस्तान के बाबा कायद बाबा इस बस्ती में ही सोते हैं। हंसते बसते रोशनियों के शहर के साए दूर बहीरा अरब के साहिल पर दिखते हैं। सिंध सूफियों की धरती है, इस धरती की बुनियादों में इश्क रचा है। रीतों और रिवाजों का गहरा सागर है और कदीमी तहजीबों का एक मरकज है। सिंधु साईं दरिया कम है, इश्क ज्यादा, मस्त मछेरों की इकलौती जान यही है, प्यारे माही गिरों की पहचान यही है। नीला गहरा इश्क समंदर, हर दिल बोले मस्त कलंदर। शाम से पहले 4 चराग यहीं चलते हैं, सहवन के दरवेश हमेशा रक्स के आलम में मिलते हैं। प्यार और अमन की राह दिखाने एक सचल सरमस्त भी आए और भिटाई ने भी एक कंदील जलाई, जिसकी लौ से आज भी पाएं लोग दुआएं। जिनके तंबूरे के सुर हैं लहू की सूरत बदन में रोशन। मंचर झील की नीली दुनिया, जिसमें बेड़ियां और मुहाने दिल दरिया से गहरे पानी में बसते हैं। रानी कोट की मीलों लंबी ये दीवारें, जिनकी बाहों में महफूज हैं सदियों के मीठे अफसाने। पास ही कुछ अलबेली सखियां खेत से फूल कपास के चुनकर एक लिबास का टुकड़ा बुनकर रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाए। थर का सहरा गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर, जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके। रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है। इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से